Hello, everyone. Good evening. So now I shall begin our event. So, dear brothers and sisters who participate here, on behalf of the Serajia Translation Department, I would like to wish you all a happy Vesak festival, happy Buddha Jayanti, happy Buddha Purnima, happy Sagadava to you all. As you all know that we are presently enjoying the light of Vesak full moon. So under this full moon, once Buddha Shakyamuni was born and attained enlightenment and enter into Mahaparinirvana. So today is the most precious day and holiest the festival among Buddhist festivals. So it is our responsibility to observe it. In order to mark this precious day, I think there are many ways to observe it. So when we look back to the Buddha's own words, so it reads, "Helping others is the best offering to me. Harming others is the worst harm to me," means Buddha. So when we are going to help others, to benefit others, so I think there are the two ways to benefit others: to give physical comfort. That is what the nurse and the doctors and the donors do these days. And other one is to give mental comforts. So regarding the mental strength, regarding the mental comforts, it is more our responsibility to help others mentally, to enrich our human brothers and sisters with more inner strength to face all the challenges, including the pandemic crisis. So regarding these ways to help our human brothers and sisters, we, Serajia Translation Department, has requested Venerable Thuden Galden to teach us meditations on 4 Brahma Viharas. So it is as a part of the celebrating the Vesak full moon day, and we are trying our best to help others to fight against the pandemics. So now, without taking much time, I would like to introduce Venerable Thuden Galden. As you all see his short biography here, Venerable Thuden Galden has been studying Buddhist philosophy at the Serajia Monastic University for advanced Buddhist studies in Karnataka state near the Mysore district. So Venerable Galden has got ordained in 2008 and got his Bhikkhu ordination in 2009 from His Holiness the Dalai Lama. And now, as a part of the Geshe Studies program at Serajia Monastic University, he is now in his 13 years of studies. The Geshe Studies program is like a doctorate studies in Buddhist education. And presently, Venerable Thuden Galden is studying Madhyamaka, the middle way or view.
And Venerable Thuden Kalden has completed his MBA from IIM Calcutta in 1909 and BTech E from IIT Bombay in 1906. So Venerable Thuden Kalden has also work experience in telecom, financial service, and technology space. So this is a short biography of Venerable Thuden Kalden. Now, I would like to request you all participants here and Facebook Live viewers to welcome Venerable Thuden Kalden to teach us meditations on 4 Brahma Viharas. Thank you all. और सबको मेरी तरफ से नमो बुद्धाय। जैसे कि लोधुर्जे ने अभी बताया, मेरा नाम काल्देन है। मैं एक भिक्षु हूँ और सेराजे नामक एक भिक्षु संघारम है जो कि दक्षिण भारत के मैसूर प्रांत में स्थित है। इस संघारम में मैं लगभग 13 साल से बौद्ध दर्शन का अभ्यास करता हूँ। इस संघारम में मेरे जैसे कई भिक्षु है, लगभग 3000 भिक्षु है और वे सारे बौद्ध दर्शन का अभ्यास करते हैं। तो हमारे संघारम में जितने भी भिक्षु है उनकी सबकी तरफ से मैं आप सबको वैशाख पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। तो इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन लगभग 2580 साल पहले, 83 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और 35 वर्ष पश्चात इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में उन्हें समाधि प्राप्त हुई थी और 80 वर्ष की आयु में इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर नामक एक स्थान है, वहां पे उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इन 3 घटनाओं के स्मरण में हम प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के दिन सामान्यतः हर जगह जहां पर भी भगवान बुद्ध के शिष्य अनुयायी है, वे साथ साथ मिलकर ध्यान लगाना, पूजा अर्चना करना आदि के माध्यम से इस पवित्र पावन पर्व को मनाते हैं। किंतु इस समय महामारी के चलते परिस्थिति अत्यंत कठिन है और लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाना संभव नहीं है। हमारे संघारम में भी प्रतिवर्ष इस अवसर पर पूरा संघ एकत्रित होकर विस्तृत पूजा अर्चना करते हैं। किंतु यहाँ पर भी इस महामारी के चलते एकत्रित होकर पूजा अर्चना करना समुचित कारणों से इस पर भी पाबंदी है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सुझाव आया कि इस साल इंटरनेट के माध्यम से हम अपने उपासक और उपासिका मित्रों से संपर्क करके और भगवान बुद्ध के किसी विशिष्ट शिक्षा पर चर्चा करें। और इसी सुझाव के चलते हमने यह तय किया कि इस साल वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने उपासक और उपासिका मित्रों से
भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार महामारी की परिस्थिति से कैसे लड़े, इस पर चर्चा करें। विशेष रूप से चत्वारी ब्रह्म विहार की शिक्षा जो भगवान बुद्ध ने दी है, वह इस परिस्थिति में कैसे लाभदायक हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इस चर्चा के प्रारंभ में भगवान बुद्ध और उनके धर्म की स्मरण में आर्य त्रिरत्नानुस्मृति सूत्र का पठन करूंगा। इस सूत्र में हमारे त्रिशरण बुद्ध, धर्म तथा संघ, इनके गुणों की व्याख्या है। तो आप लोगों में भी शायद कुछ लोग के पास ये सूत्र हो सकता है, तो आप भी साथ साथ पठन कीजिए, या फिर जो उच्चारण मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। नमः सर्वबुद्ध बोधिसत्वेभ्य बुद्धानुस्मृति इति बुद्धो भगवान तथागत अरहंत सम्यक् संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविद अनुत्तर पुरुषोत्तम सारथी शास्त्रादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवान इति निषन्दस्तथागत पुण्यानां विप्रनाश कुशल मूलानां अलंकृत शांत आलय पुण्य निधानानां चितितो अनुमंजनेय कुसुमितो लक्षणीय प्रतिरूपो गोचरेण अप्रतिकूलो दर्शनेन अभिरति श्रद्धादि मुक्तानां अनभिभूत प्रज्ञा अनवमर्दनीयो बले शास्ता सर्वसत्त्वानां पिता बोधिसत्त्वानां राजा आर्यपुत्कलानां सार्थवा निर्वाण नगर संप्रस्थितानां अप्रमेयो ज्ञानेन अचिंत प्रतिभानेन विशुद्ध स्वरेण आस्वादिन्यो घोषेण असचन रूपेण प्रतिस्मकायेन लिप्त कामेय अनुलिप्तो रूपेय संसृष्टारूपेय विप्रमुक्त स्कंदेभ्य विसंप्रयुक्त धातुभिः संवृत्त आयतनीय प्रचिन्नो ग्रंथे विमुक्त परिधारणीय परिमुक्त सृष्णया ओगाद उत्तीर्ण परिपूर्ण ज्ञानेन प्रतिष्ठितो अतीतानागता प्रत्युत्पन्नानां बुद्धानां भगवतां ज्ञाने अप्रतिष्ठितो निर्वाणे स्थितो भूतकोटयां स्थित सर्वसत्त्वलोकनीयायां भूमो सर्व इमे तथागतानां विशेषता सम्यक् गुणाः धर्मानुस्मृति सधर्मस्तु आदौ कल्याण मध्य कल्याण पर्यवसाने कल्याण स्वर्थ स्वंजन केवल परिपूर्ण परिशुद्ध पर्यवदात स्वाख्यात भगवतो धर्म सांदृष्ट निर्जर आकालिक औपनायिक ऐपशिक प्रत्यात्म वेदनीय विज्ञेय स्वाख्यातो भगवतो धर्म विनेय सुप्रवेदित नैर्यानिक संबोधिगामी अभिन्न संस्तुप सप्रतिशरण छिन्न लौकिक संघानुस्मृति सुप्रतिपन्नो भगवत आर्य संघ न्याय प्रतिपन्न रुचि प्रतिपन्न साम्यचि प्रतिपन्न अंजलि कर्णीय साम्यचि कर्णीय पुण्यशी क्षेत्र महादर्शिना परिशोधक प्रावणीय आवनीय आर्य त्रिरत्नानुस्मृति सूत्रम समाप्तम। तो ये सूत्र इसमें त्रिशरण बुद्ध धर्म तथा संघ के गुणों की व्याख्या है। तो हमारी आज की चर्चा, जैसे लोसांग जी ने बताया, भगवान बुद्ध की विशिष्ट शिक्षा है ब्रह्म विहार, 4 ब्रह्म विहार। और इस महामारी की परिस्थिति में इस पे ध्यान लगाना किस प्रकार हमें लाभदायक हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वर्तमान महामारी की परिस्थिति से हम सामना करने के लिए भगवान बुद्ध की 4 ब्रह्म विहार की शिक्षा हमें किस प्रकार सशक्त बना सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले यह परिस्थिति हमें कौन सी चुनौतियां प्रस्तुत करती है, इसका परिचय करना आवश्यक है। तो अभी दिसंबर 2019 से लेकर लगभग 16-17 महीने से हम इस महामारी से सामना करते आ रहे हैं। फिर भी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाए।
केवल भारत में ही प्रतिदिन 3,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। प्रतिदिन 2-2.5 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। तो परिस्थिति अत्यंत कठिन है, विशेष रूप से जिन लोगों की आकस्मिक और अकाल मृत्यु हुई है। तो इन मृतकों के जो प्रियजन हैं, उन्हें भी अत्यंत दुख और शोक का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों में तो लंबे समय तक इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। अधिकांश लोगों को बीमारी से संक्रमण नहीं हुआ है, किंतु कब संक्रमित होंगे इस चिंता से उन्हें भी बहुत अधिक तनाव है। तो इस डर से, तनाव से भी लोग पीड़ित हैं। तो इस संक्रमण के जिस पीड़ा का अनुभव होता है, उस पीड़ा के दो पहलू है। लोसान दोरजे ने भी इसको संक्षिप्त में बताया। तो इसके दो पहलू, पहला तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो जहां तक शारीरिक पीड़ा का संबंध है, इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दवाइयों की उपलब्धि ना होना, अस्पताल में सुविधाएं ना होना, टीका भी पर्याप्त संख्या में ना होना आदि जैसे अनेक समस्याएं। और इन सब चुनौतियों में ये भी देखा जाता है कि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित हैं, उन्हें कई तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मानव समाज प्रयास कर रहा है इन चुनौतियों से निपटने के लिए, फिर भी हमारे सारे प्रयासों के बावजूद इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, इतने विशाल संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अधिकतर लोग अभी भी डर और तनाव से पीड़ित हैं। किसी भी समय इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, खतरा हमेशा बना रहता है। संक्रमित होने पर अस्पताल में इलाज हो पाएगा या नहीं, इस चिंता से ग्रस्त है। चिंता ये भी है कि आगे भविष्य में हमारी आर्थिक परिस्थिति जो वर्तमान में बिगड़ी है, उसमें हम सुधार कर पाएंगे या नहीं। तो ये तो हुई चुनौतियों की बात। इन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहा है समाज? तो सहायता करने वाले उनमें सबसे प्रमुख है हमारे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी। पूरे निस्वार्थ भाव से यह लोग पीड़ितों के इलाज के लिए प्रयत्नशील हैं। साथ ही ऐसी कई समाज सेवी संस्थाएं हैं और कई व्यक्ति हैं जो इलाज के दरमियान और इलाज के पश्चात भी लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। लोगों को दवाइयां भेंट करना, ऑक्सीजन आदि जैसी आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाना आदि जैसी बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। गरीब तबके के हमारे जो जरूरतमंद मित्र हैं, उनके इलाज में सहायता और इलाज के पश्चात उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं।
इन सब की सहायता से महामारी से जो हमारी समस्याएं, हमें जो समस्या प्रस्तुत हुई है, उन्हें हल्का करने में मदद हो रही है। हम भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस कठिन परिस्थिति में लोगों की कठिनाइयां हल्की करने में सहायता कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये ठीक भी है, क्योंकि यह हर व्यक्ति का सामाजिक दायित्व बनता है। सामाजिक दायित्व बनता है कि ऐसे कठिन काल में हम एक दूसरे की मदद करें। सामान्यता पारस्परिक निर्भरता हमारे समाज की वास्तविकता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अपनी खुशहाली के लिए अन्य लोगों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। ये सत्य है, पूरी तरह से सिद्ध है। इसमें मतभेद की कोई संभावना नहीं है। तो समाज का एक अंश होने के नाते हम अपेक्षा करते हैं कि आवश्यकता होने पर समाज के अन्य अंश हमारी सहायता करेंगे। जब हम ऐसी अपेक्षा करते हैं तो स्वाभाविक है कि यह हमारा भी एक तरह से दायित्व बनता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में हम अपनी ओर से समाज के अन्य अंश के खुशहाली के लिए प्रयास करें। पारस्परिक निर्भरता हमारे समाज की वास्तविकता है। पूरा वैश्विक समाज एक बड़े परिवार की तरह है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसे हम अपना विवेक इस्तेमाल करके सिद्ध कर सकते हैं। अपने अनुभव से हमें ये पता है कि यदि हमारे परिवार में किसी सदस्य को किसी प्रकार की पीड़ा हो, स्वाभाविक है कि परिवार के अन्य सदस्य भी खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे में आवश्यक है कि जो परिवार का सदस्य पीड़ित है, उसे पीड़ा से रहित करने के लिए उसकी सहायता करें। एक और चीज हमें दिखाई देती है कि इस वायरस ने हमें अपनी सामाजिक समानता याद दिलाई है। सामाजिक समानता का जो आदर्श हम कई वर्षों से सिद्ध करने में लगे हुए हैं, इस वायरस ने तो उसे 1-2 साल में ही सिद्ध कर दिया। यह वायरस क्या अमीर, क्या गरीब, क्या शहरी, क्या ग्रामीण, सबको एक समान संक्रमित करने की क्षमता रखता है। सबको एक समान खतरा प्रस्तुत करता है। आवश्यक है कि इस वायरस का तोड़ भी सार्वभौमिक हो। हम तब तक इस वायरस से सुरक्षित नहीं हैं तब तक जब तक हमारा पड़ोसी इस वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित ना हो। संभव है कि वैयक्तिक स्तर पर हम किसी विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। हो सकता है कि हम सहायता करने के इच्छुक हैं, किंतु किसी कारणवश हमारा प्रत्यक्ष लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता करना संभव नहीं है। और ये भी है, हो सकता है कि जो लोग ऐसी सहायता करने के लिए प्रत्यक्ष लोगों के बीच में पहुंच गए हैं, अभी भी उनके मन में एक ऐसी आशा है कि लोगों की सहायता के लिए मैं इससे अधिक और भी कुछ कर सकता हूं। सेवा, शुश्रूषा,
माली आर्थिक सहायता तो हम कर रहे हैं, क्या इसे अधिक लाभदायी करने के लिए और संपन्न करने के लिए कोई मार्ग है? ऐसी सहायता को पूरी तरह संपन्न करने के लिए क्या भगवान बुद्ध ने हमें कोई मार्ग, कोई शिक्षा दी है? एक ऐसी ही ध्यान साधना भगवान बुद्ध ने हमें दिखाई है और आज हम इसी शिक्षा पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध ने ब्रह्म विहार की ध्यान साधना की शिक्षा दी है। कैसे इस आपदा के समय में हम इस ध्यान साधना के माध्यम से लोगों की खुशहाली के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम तो ब्रह्म विहार ध्यान साधना से क्या लाभ हो सकता है? इस परिस्थिति से लड़ने के लिए क्या लाभ हो सकता है? जो लोग लोगों के बीच प्रत्यक्ष उनके समक्ष जाकर महामारी से लड़ने में सहायता कर रहे हैं, उनका भी योगदान इस ब्रह्म विहार की ध्यान साधना से अधिक संपन्न होगा। और जो हम जैसे लोग जो सहायता करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोगों के बीच जाकर कार्य करना संभव नहीं है और जिनकी आर्थिक सहायता करने की क्षमता भी सीमित है, ऐसे लोगों के लिए भी ब्रह्म विहार की ध्यान साधना अत्यंत असरदार होगी। हमारे डॉक्टरों और नर्सों जैसे स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपना योगदान मैत्री भाव, करुणा भाव, इनके द्वारा परिपूर्ण और संपन्न बनाने में सहायता होगी। जो पहले से ही योगदान करते आ रहे हैं, उनका योगदान और अधिक व्यापक और शक्तिशाली होगा। और जो हम जैसे साधारण शुभ चिंतक हितैषी है, हमें भी अपने ही आवाज से अपना योगदान करने का एक द्वार, एक माध्यम उपलब्ध होगा। हर पीड़ित ये चाहता है कि अपने प्रियजनों का प्रेम और उनकी करुणा, सहानुभूति उनके लिए उपलब्ध हो। चाहे वे प्रियजन उनके प्रत्यक्ष समीप हो ना हो, समीप ना हो, फिर भी इस बोझ से उन्हें दिलासा होता है कि मेरे प्रिय मेरी चिंता कर रहे हैं। ब्रह्म विहार की ध्यान साधना से संसार के समस्त जीवों के प्रति हम ऐसी ही प्रभावशाली प्रेम, करुणा और मैत्री भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ब्रह्म विहारों की व्याख्या क्या है? क्या परिभाषा है ब्रह्म विहारों की? और पहले तो हम इसकी परिभाषा पे चर्चा करेंगे और इसके पश्चात एक संक्षिप्त ध्यान साधना, उसकी विधि का ध्यान अभ्यास करेंगे। तो पहले उसकी इन ब्रह्म विहारों की परिभाषा। सूत्रों में 4 ब्रह्म विहारों की व्याख्या है। ये 4 ब्रह्म विहार क्या है? मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। तो इनकी परिभाषा क्या है? आर्य असंग के अभिधर्म समुच्चय में इसकी व्याख्या कुछ इस तरह है। वे कहते हैं अपने इस ग्रंथ में, अप्रमाणानि कतमानि चत्वारि अप्रमाणानि
मैत्री कतमा, मैत्री क्या है? ध्यानम निश्रित्य सत्वा सुखेन संप्रयुज्येरन इति विहार समृद्धो समाधि प्रज्ञा तत् संप्रयुक्ताश्च चित्त चैतसिका धर्मा। करुणा कथमा, करुणा क्या है? ध्यानम निश्रित्य सत्वा दुखेन युज्येरन इति विहार समृद्धो समाधि प्रज्ञा शेषम पूर्ववत। मुदिता कथमा, मुदित क्या है? ध्यानम निश्रित्य सत्वः सुखेन न वियुज्येरन इति विहार समृद्धो समाधि प्रज्ञा शेषम पूर्ववत। उपेक्षा कथमा, ध्यानम निश्रित्य सत्वाहित लभेरन इति विहार समृद्धो समाधि प्रज्ञा शेषम पूर्ववत। तो सरल भाषा में इनकी व्याख्या कुछ इस तरह है। मैत्री, प्रथम तो मैत्री भाव, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है। संसार के जो समस्त सचेतन जीव है, इन सारे जीवों को अपने चित्त का आलंबन विषय बनाकर उन पे ध्यान केंद्रित कर संसार में जो भी बंधित ये जीव है, जिन्हें सुख का अभाव है, वे सुख से युक्त हो जाए, सार्थक सुख से युक्त हो जाए, इस कामना के आकार वाले चित्त को मैत्री भाव कहते हैं। तो इस कामना के आकार के रूप में, इस कामना के रूप में चित्त को उत्पन्न करना, उसी आकार वाले चित्त को हम मैत्री भाव कहते हैं। दुख से ग्रस्त सभी सचेतन जीव दुख से मुक्त हो जाए, ऐसी कामना के आकार वाले चित्त को हम करुणा भाव कहते हैं। मुदित भाव क्या है? सुख का अनुभव करने वाले सचेतन जीव सदैव सुख से युक्त रहे, ऐसी कामना के आकार वाले चित्त को मुदित भाव कहते हैं। और उपेक्षा, राग और द्वेष आदि क्लेश से व्यथित सभी सचेतन जीव राग और द्वेष आदि के क्लेशों से मुक्त हो जाए, ऐसी कामना के आकार वाले चित्त को हम उपेक्षा भाव कहते हैं। तो अभी ब्रह्म विहारों की जो मुख्य ध्यान साधना है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य ध्यान विधि से पहले एक प्रारंभिक ध्यान आवश्यक है। महायान प्रणाली में जब भी किसी प्रकार की ध्यान साधना करते हैं, तब उसका मूलाधार बोधिचित्त होता है। और बोधिचित्त उत्पाद के लिए आवश्यक है सभी जीवों में समरसता देखना। हम सभी जीव समरस हैं, हम सभी सुख प्राप्ति इच्छुक हैं और दुख मुक्ति इच्छुक है। जैसे मैं अपने आप के लिए सुख की इच्छा करता हूं, उसी तरह अन्य जीव भी अपने आप के लिए सुख की इच्छा करते हैं। जैसे मैं दुख से मुक्त हो जाऊं ऐसी इच्छा करता हूं, उसी तरह अन्य जीव भी चाहते हैं कि वे दुख से मुक्त हो जाएं। तो सर्वप्रथम इस समरसता, इस वास्तविकता का स्मरण करेंगे। तो इस वास्तविकता, इस समरसता का स्मरण करने के पश्चात विधि आगे बढ़ाते हैं। तो प्रथम तो शरण की स्थापना।
तो आप अपनी अपनी जगह अपने अपने आसन पर आराम से बैठें, पीठ सीधी करके बैठें और चित्त को एकाग्र करें। आप कुछ समय लीजिए चित्त को एकाग्र करने के लिए। चाहे तो आप अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए। तो अभी शरण की स्थापना, अपने मस्तक के सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक कमल की कल्पना करें। एक अति सुंदर कमल, और उस कमल पर चंद्र और सूर्य मंडल के आसन पर भगवान बुद्ध बैठे हैं, ऐसी कल्पना करें। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। उनका दाहिना हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है और आसन का स्पर्श करे हुए है, और बाएं हाथ में एक पात्र है जो ज्ञान के अमृत से भरा हुआ है और अपनी नाभि के स्तर पर है। भगवान बुद्ध का काय अति तेजस्वी, दीप्तिमान और स्मरणीय है। उनके शरीर से सुवर्ण किरणें 10 दिशाओं में प्रसारित हो रही है। भगवान बुद्ध के दाई और बाई और आर्य अवलोकितेश्वर तथा आर्य मंजूषी जैसे असंख्य बोधिसत्व अपने अपने आसन पर बैठे हैं। साथ ही आर्य नागार्जुन और आर्य असंग जैसे मनुष्य रूप के बोधिसत्व भी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। और इसके साथ ही आर्य शारिपुत्र और आर्य मौदगल्ययान जैसे असंख्य अरहंत अपने अपने आसन पर बैठे हैं। तो भगवान बुद्ध असंख्य बोधिसत्व और असंख्य अरहंत के इस समुदाय को साक्षी बनाकर पूर्ण एकाग्रता से शरणागमन के इन शब्दों का उच्चारण करें। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। इसके पश्चात बोधिचित्त की इस प्रार्थना का उच्चारण करें। बुद्ध धर्म तथा संघ की शरणागत हूं। संबोधि प्राप्त होने तक मैं रहूंगा इनकी शरण में। मुझे दान आदि जैसे 6 पारमिताओं द्वारा सर्वलोक हिताय संबोधि प्राप्त हो सके। अब आपका चित्त पूरी तरह एकाग्र करके ध्यान संसार के सारे जीवों पर केंद्रित करें। समस्त सचेतन जीवों को अपने इस एकाग्र चित्त का आलंबन विषय बनाएं। तो सभी प्राणी, सभी मनुष्य जीव, सभी आपके इस चित्त का आलंबन विषय बनाएं सभी को। तो सर्वप्रथम हम मैत्री भाव को निर्माण करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो मैत्री भाव किस तरह उत्पन्न किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं सार्थक सुख से जुड़ जाऊं, सार्थक सुख की मुझे अनुभूति हो,
अभ्युदय, मोक्ष आदि जैसे सार्थक सुख और उनके विशिष्ट हेतु कारण उनसे युक्त हो, उसी तरह अन्य जीव भी ऐसे ही सार्थक सुख का उन्हें प्रथम तो परिचय हो और वह भी इस सार्थक सुख के हेतु कारणों से युक्त हो, सार्थक सुख की अनुभूति हो उन्हें। ऐसी कामना के आकार में आप अपना चित्त उत्पन्न करें। तत्कालीन महामारी की परिस्थिति में भी इस संसार के अधिकतम जीव सुख से वंचित है। सुख से वंचित इन जीवों को प्रथम तो सार्थक सुख का परिचय हो जाए और सार्थक सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसे उत्पन्न करने के जो हेतु कारण है, कुशल कर्म, पुण्य संभार आदि का ज्ञान हो, उन्हें इसका ज्ञान हो जाए और उन सभी को सुख की प्राप्ति हो और सुख के हेतु कारण से युक्त हो जाए, ऐसी कामना मन में प्रकट करें। इस कामना के आकार के चित्त को हम मैत्री भाव कहते हैं। तो सभी समस्त जीवों को सुख प्राप्ति हो, सुख के हेतु कारणों की प्राप्ति हो, ऐसी कामना के आकार के चित्त को हम मैत्री भाव कहते हैं। वर्तमान स्थिति में भी डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी पीड़ितों की सेवा में जुटे हुए हैं और अन्य लोग आर्थिक रूप से लोगों की सहायता करने में जुटे हैं। तो ये सब दान आदि पारमिता के अभ्यास में जुटे हुए हैं, सेवा दान कर रहे हैं, आर्थिक रूप से दान कर रहे हैं। तो दान पारमिता का अभ्यास में उसमें जुटे हुए हैं। तो आगे चलकर उन्हें पारमिताओं के आधार पर, इन्हीं पारमिताओं के आधार पर उन्हें सार्थक सुख प्राप्त हो, ऐसी कामना करें। तो इसके बाद करुणा भाव, फिर से अपना चित्त एकाग्र करे और संसार के समस्त जीवों को अपने चित्त का आलंबन विषय बनाए। संसार के सारे जीव जो दुख से पीड़ित हैं, उदाहरणार्थ महामारी की पीड़ा से ग्रस्त जीवों को चित्त का आलंबन विषय बनाए। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं दुख और दुख के हेतु कारणों से वियुक्त हो जाऊं, अलग हो जाऊं, उसी तरह ये सारे जीव भी दुख और दुख के हेतु कारणों से वियुक्त हो जाए, अलग हो जाए, ऐसी कामना के आकार में चित्त उत्पन्न करें। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मैं दुख और दुख के हेतु कारणों से अलग हो जाऊं और इससे अलग होने के लिए जो अतीत में मैंने अकुशल कर्म किए हैं उनका शुद्धिकरण करूं, उसी तरह संसार के सारे जीव भी प्रथम तो उन्हें दुख का परिचय हो जाए और दुख के जो हेतु कारण हैं उनका परिचय हो जाए और दुख से मुक्त होने का मार्ग, उसका भी परिचय हो जाए और वे भी अपने चित्त से क्लेश आदि का शुद्धिकरण करने में जुट जाए और अंत में वे भी दुख और दुख के हेतु कारणों से पूर्णतः मुक्त हो जाए, वियुक्त हो जाए, ऐसी कामना के आकार में चित्त उत्पन्न करें। इसको हम करुणा भाव कहते हैं। तो महामारी से पीड़ित सारे जीव शीघ्र ही पीड़ा से मुक्त हो
इस दुख से मुक्त हो। ऐसा दुख सुख प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं निर्माण करता है, इसलिए वे ऐसे दुख से शीघ्र ही मुक्त हो जाए ऐसी कामना करें। तो ये हुआ करुणा भाव। तीसरा, मुदित भाव। तो अपने चित्त को एकाग्र बनाए रखें और ऐसे एकाग्र चित्त का ध्यान सुख से संपन्न संसार के जो जीव है उनकी ओर केंद्रित करें। सुख से संपन्न संसार के जीव, इन्हें इस चित्त का आलंबन विषय बनाएं। जैसे मैं चाहूंगा कि मुझे जो भी सुख प्राप्त हुआ है उस सुख से मैं वियुक्त न हूं, और उस सुख के जो हेतु कारण हैं वे सदैव प्रभावकारी बने रहें। उसी तरह संसार के समस्त सुख संपन्न जीवों के, उनके भी सुख और सुख उत्पन्न करने वाले हेतु कारण पहले जैसे ही प्रभावकारी बने रहें ऐसी कामना करें। वर्तमान स्थिति में भी धन संपन्न, धनवान, चिकित्सा सेवा आदि का कौशल्य संपन्न कुशल डॉक्टर और नर्स आदि, इन्हें भी एक विशेष प्रकार की संपदा प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर वे अभी इस परिस्थिति में लोगों की कठिनाइयां दूर करने में प्रभावशील है। उनकी यह संपदा बनी रहे और इस संपदा को उत्पन्न करने वाले हेतु कारण वे भी पहले की तरह प्रभावशाली बने रहे, ऐसी कामना के आकार में अपना चित्त उत्पन्न करें। ऐसे ही आकार के चित्त को मुदित भाव कहेंगे। तो इसके पश्चात उपेक्षा भाव। एक बार फिर अपना चित्त एकाग्र कर उसका ध्यान संसार के उन समस्त जीव को जो सम्यक दृष्टि से वंचित है और क्लेश युक्त है उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। सम्यक दृष्टि से वंचित क्लेश युक्त संसार के समस्त जीवों को इस चित्त का आलंबन विषय बनाएं और ऐसा विचार करें, मैं चाहूंगा कि मुझे सम्यक दृष्टि का परिचय हुआ है, उसके आधार पर निकट और दूरस्थ, अपना पराया, प्रिय अप्रिय का भेद ना करूं। अपने प्रिय के प्रति राग और जो अप्रिय है उनके प्रति द्वेष आदि जैसे क्लेशों से मुक्त हो जाऊं। उसी तरह संसार के समस्त जीव, निकट और दूरस्थ, अपना पराया, प्रिय और अप्रिय आदि के भेद से मुक्त हो सम्यक दृष्टि प्राप्त करके अविद्या का नाश करें और पक्षपाती आचरण से पूर्णता मुक्त हो, ऐसी कामना के आकार में अपना चित्त उत्पन्न करें। ऐसे ही कामना के आकार वाले चित्त को हम उपेक्षा भाव कहते हैं। तो जीवों की समरसता का स्मरण करके निकट और दूरस्थ आदि का भेद ना करके सभी को समान रूप से उनका हित सिद्ध हो, ऐसी कामना के आकार वाला चित्त ही उपेक्षा भाव है। और वर्तमान परिस्थिति में भी हम अपना और पराया ऐसा भेद ना करके सभी जीवों को समान रूप से अपनी सहायता का लाभ प्राप्त हो, ऐसी कामना करें। फिर एक बार इन शब्दों का उच्चारण करके 4 ब्रह्म विहारों का स्मरण करें।
सर्वसत्वा सुखेन संप्रयुज्येरेण सर्वसत्वा दुखेन वियुज्येरेण सर्वसत्वा सुखेन न वियुज्येरेण सर्वसत्वा हीत लभेरेण। तो इन चार ब्रह्म विहारों में हमारे चित्त की स्थापना से हमारे शरीर में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी कल्पना करें, यह ऊर्जा इन भावनाओं का साक्षात रूप है। यह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। शरीर के कण कण में, प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाती है। हमारे समक्ष भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, अरहंत आदि का समुदाय हमारी इन भावनाओं से अति प्रसन्न होकर, अति तृप्त होकर आशीर्वाद के रूप में उनके हृदय से श्वेत किरणें प्रसारित करते हुए, ये श्वेत किरणें हमारे शरीर के उष्णी शीर्ष से प्रवेश करके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती। चार ब्रह्म विहारों की भावना जो हमने अपने चित्त धारा में उत्पन्न की है, उससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रभाव है, इन श्वेत किरणों से और अधिक ज्वलंत हो जाता है। हमारा शरीर पूरी तरह इस ज्वलंत ऊर्जा से संपन्न हुआ है और यह ऊर्जा हमारे हृदय से संसार के 10 दिशाओं में प्रक्षेपित होकर संसार के हर जीव में प्रवेश कर जाती है और प्रत्येक जीव के माध्यम से ब्रह्म विहार की ऊर्जा क्रियाशील होकर प्रेम, करुणा, मैत्री की श्रृंखला सिद्ध हो जाती है और यह ऊर्जा संक्रमण की श्रृंखला का विरोध करती है। तो ये हुई ब्रह्म विहार, चार ब्रह्म विहारों की एक संक्षिप्त ध्यान साधना। अंत में इस धर्म चर्चा के द्वारा हमने जो पुण्य निर्माण किया है, उसकी परिणामना करेंगे। परिणामना के रूप में आचार्य शांति देव के बोधिचर्य अवतार से एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर्वासु दिक्षु यावन्त काय चित्त व्यथातुरा ते प्राप्नुवन्तु मत्पुण्येय सुख प्रामोद्य सागरान। सभी दिशाओं में जो कोई भी शारीरिक और मानसिक व्यथाओं से पीड़ित है, वे मेरे पुण्यों से उन सभी व्यथाओं से मुक्त होकर सुख आनंद का सागर प्राप्त करें। आसंसारम सुखज्ज निर्मा भूतेशाम कदाचन बोधिसत्व सुखम प्राप्तम भवत्व वीरतः जगतः। जब तक जीव संसार में रहें, उनको निरंतर सुख प्राप्त हो और अंत में सर्वोत्तम बोधि का सुख मिले, ऐसी प्रार्थना करें। तो बस यहीं पे मैं अपनी इस चर्चा का अंत करूंगा। समय हमारे पास शायद कम है, प्रश्नोत्तर के लिए समय थोड़ा रखा था, लेकिन अभी प्रश्नोत्तर के लिए समय बचा नहीं है। लो दोजे, हेलो। Yes,
What would you like to do? Karshen, that Tuzudi, Zosarwa. Ni Come say to cheese. yeah, yeah. Cheese bad. Yeah. So yeah, you have some questions most whenever Gardena. Hello. So if you have any questions regarding the for Brahma Viharas or the other questions regarding the how to challenge, how to face the challenges and as the pandemic crisis, or other questions, you can post it now. So you. I have a small suggestion. Okay. What we can do probably, I there is no time today. People can ask, keep the question posted to you, and tomorrow's session we can take that. आज यदि समय नहीं है प्रश्न पूछने का, प्रश्न आपके पास पूछा दिए जाए और कल जी बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि जल्दी में कोई फायदा नहीं है, आराम से, बल्कि आज की जो भी आपने दिया है मेडिटेशन का, उसके ऊपर विचार करके लोग अपना बना लें कि क्या पूछना चाहते हैं, और यदि ईमेल आपने दिए उसके ऊपर भी जा सकते हैं, नहीं तो कल शुरू में 5 मिनट लगाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे बिजली चली गई है तो अंधेरा हुआ। आपको तो इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। तो जी बिल्कुल आपके सुझाव के अनुसार ही लोगों को यदि प्रश्न है तो फिर जो ईमेल आईडी उस विज्ञापन में था वहाँ पे Yeah, so as he had suggested, it's better, I think, we take the questions offline and let them post the questions to the email ID that you've given on the poster. And then if there are questions, then we can answer them offline. Yeah. Yeah. Hello. Yeah, kogi to hai. Nata lokshi dua dila. Oh. Ni video di thongi mindu. 아니 지난 통면도 드네 그 간디치에서 아주 드네 산이 지기배. Marita Quran, so as Professor Arvinder, right? Arjinder. Yeah. As he has proposed, maybe we take the questions offline. It's doesn't make sense for us to rush through them, yeah. Because maybe people also get a chance to go over the material that was presented, and they can post their queries later to the email ID that you submitted. Yeah. I think that's a better idea. Yeah, as I was really feeling that to a greater extent you have covered everything in very much detail in a brief, no doubt, but it was to the point, it has taken well. But even then, if there are doubts, if there are queries, there may be some suggestions that can be taken up. Right, yeah. For more effectiveness. True, that's right, yeah. So maybe we'll do that, yeah. Lodar Jita, Bindichina Yasta. 아니 먼저 산이 나니 배 간디. Mare Marita Quran, so email the post chegita question. Ani jailan also the chiva tum kunso topa da khare na. Ila lekin also offline chair ma. Email ti digire. 아니 단에 next day 간저 가디자 콘솔 내지잖아. 이 jaila ke chair ma. Okay. Right. So then now we would like to conclude
here. So I would like to thank Venerable Tutankhamun for his wonderful thoughts and for his resourceful thoughts on the meditation, how to meditate on 4 Brahma Viharas. And we hope he will continue to teach us in future. And we, Seraje Translation Department, also would like to continue organize such lectures in Hindi or in English to enhance more human strength to face any kind of challenge. And so to bring more awareness on how to improve our own the inner strength. So lastly, today on this precious holiday, we the virtues and merits we have collected here together is dedicated for global peace, and we dedicated all the virtues and merits virtues for lasting peace in the world. And it's a sort of the healing thoughts to all the patients, and it's a prayer to all who lost their lives during this pandemic crisis. And we pray and we dedicate all these virtues to be free us all from this pandemic crisis as soon as possible, and to see a more prosperous and happy world. Thank you all. Yeah, once again, I would like to again extend my heartiest congratulations and good wishes for Buddha Purnima, the whole community. Buddha do not belong to only the Buddhists, it belongs to all of us, because it's a symbol, it is an expression of enlightenment from the divinity, and how one has to really get away from the miseries, and that is something great. The Krishna, something which is a great thing which has given, that was one thing which is a root cause of all miseries, and if we can conquer them, that's all we get the eternal peace. Thank you very much, Naji. You have done a wonderful job and good message on a very auspicious day you have given to all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. There are some my friends also from the Mumbai and from Gujarat and from Delhi. So thank you all. Thank you all who present here. Thank you. Good day. I've been going to the Mahabodhi Society on this day. Many times I have given a talk also when we are party of this day celebrations. But as you said, this year we are not able to move out. We are confined from home, but still our hearts are open. Sure. People can walk in just like that, and we can go anywhere we feel like. May not be physically, but definitely with the wishes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Kaldenla. Thank Thank you, you. Sarah. See you all tomorrow.